I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is moving ahead with HTML5. Objectives of learning about HTML5 lists, marquee tag, creating tables. We have learned in previous chapter how to create HTML5 document in Notepad and view it in any web browser. We have also learned about some tags and attributes of HTML5. Let us learn about some more features of HTML5 in this chapter, like creating lists and tables. HTML5 allows you to create different types of lists and tables. तो अभी तक आपने HTML5 डॉक्यूमेंट को नोटपैड को यूज़ करते हुए कैसे बनाना है आपने देखा. टैग्स को कैसे बनाना है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, क्या टैग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. अब आप इसी के बारे में HTML5 के ही कुछ और फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. List in HTML. A list is the most efficient way of presenting information in a precise manner. It helps in making important points and stand out more clearly and thus grabs a visitor's attention. A list is a set of items usually written one below the other. The most common HTML lists are as follows. तो इससे पहले कि आप लिस्ट के बारे में जानें, लिस्ट होता क्या है. लिस्ट आपकी एक सीक्वेंस वाइज में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, कंटेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव ये बनाता है और विजिटर का अटेंशन उसकी तरफ ये खींच के ले आता है. तो सबसे पहले आपकी क्या लिस्ट है? ऑर्डर्ड लिस्ट. एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. द लिस्ट बिगिंस एंड एंड्स विद ओपनिंग OL एंड क्लोजिंग OL tags respectively. This tag is used to create an ordered list like 1, 2, 3, ABC, first, second, third, etc. Here OL stands for ordered list. The data of the ordered list is defined in the opening LI tag. Here LI stands for list item. The attributes of the OL opening tag are as follows. Start. This attribute is used to specify the start of the ordered list. Type. This attribute is used to specify the style of ordered list. तो आपका जो ordered list होता है, पहली टाइप का लिस्ट है आपके HTML में. इसका मतलब क्या है? आपने जो भी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं वो आपको एक लिस्ट, एक सीक्वेंशियल मैनर में आपको दिखता है. इसमें भी आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं, OL ओपनिंग टैग एंड OL क्लोजिंग टैग. बिल्कुल सेम सिंटैक्स फॉलो होता है. इसके अलावा जो नंबरिंग होती है ऑर्डर्ड, ये 1, 2, 3 ABC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो रोमन नंबर्स होते हैं उन वैल्यूज़ में ये दी जाती है. इसमें आपका LI ओपनिंग टैग होता है. LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम. एट्रीब्यूट्स भी होते हैं आपके ओपनिंग OL टैग्स के, जैसे कि स्टार्ट. स्टार्ट में आपकी जो ऑर्डर्ड लिस्ट की स्टार्टिंग है वो गिवन होती है, वो स्पेसिफाइड होती है. देन कम्स योर टाइप. किस टाइप या किस स्टाइल का आपका ऑर्डर लिस्ट है वो आपको गिवन होता है. एंगल ब्रैकेट ओपन OL टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास A, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, angle bracket close. Will start the list from A. Angle bracket open OL type double inverted comma A, double inverted comma close. Start is equals to double inverted comma open 3, double inverted comma close, angle bracket close. Will start the list from C. Angle bracket open OL type is equals to double inverted comma open 1, double inverted comma close. Start is equals to double inverted comma open 9, double inverted comma close, angle bracket close. Will start the list from 9. Angle bracket open OL type is equals to double inverted comma open 1, double inverted comma close. Start is equals to double inverted comma open 3, double inverted comma close, angle bracket close. Will start the list from third. Angle bracket open OL type is equals to double inverted comma open I, double inverted comma close. Start is equals to double inverted comma open 5, double inverted comma close, angle bracket close. Will start the list from 5. अब आपके अलग अलग टैग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका एक टैग है एंगल ब्रैकेट आपने ओपन किया, OL टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपने A लिखा और फिर एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो आपकी लिस्ट A से स्टार्ट हो जाएगी. सिमिलरली आप यहाँ पे A की जगह अगर 1 लिखेंगे तो लिस्ट आपकी 1 से शुरू हो जाएगी. इन शॉर्ट इस सिंटैक्स के अंदर आप जो भी नंबरिंग डालेंगे वो लिस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगी. Below table shows different examples of the type attribute. Type, numbering or alphabetical scheme examples: A uppercase letters A B C D, A lowercase letters A B C D, I uppercase Roman numbers first, second, third, fourth, I lowercase Roman numbers first, second, third, fourth, 1 numbers 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आपके कुछ टाइप हैं नंबरिंग और अल्फाबेटिकल मैनर्स में, जैसे कि आपका अपर केस अगर आपका कैपिटल में ए है, यानी कि आपको जितने भी
सीक्वेंसिंग होगी ऑर्डर्ड लिस्ट में वो आपके कैपिटल अपर केस में आएगी. देन कम्स योर स्मॉलर केस, लोअर केस का ए होगा तो सारी की सारी सीक्वेंसिंग आपकी लोअर केस में आएगी. देन कम्स योर रोमन नंबर्स में भी आपके अपर केस होते हैं. अपर केस होगा तो सारे के सारे रोमन नंबर्स आपके अपर केस में आएंगे. लोअर केस में अगर आपने आई लिखा हुआ है तो सारे के सारे आपके लोअर केस रोमन नंबर्स में आएंगे. देन कम्स योर नंबर्स 1 2 3, तो इसमें आपकी सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 इस पैटर्न में होगी. Let's see the use of a type and start attribute of opening OL tag. Unordered list. An unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence. The list can be defined with the opening UL and closing UL tags. This tag is used to create unordered list like bulleted list in the form of disk, square or circle. Here UL stands for unordered list. The opening LI tag is used to define data under the opening UL tag. The attribute of opening UL tag is as follows. तो UL tag की opening के बारे में जानने से पहले आपके कुछ components होते हैं OL opening tag के भी. सबसे पहला है unordered list. ये आपकी इसमें कोई sequencing नहीं होती है, कोई interconnection नहीं होता है. इस list में आपके normal जो भी आपकी unordered list के लिस्ट होती है, ऑप्शंस होते हैं, वो सारे डेटा या आइटम्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, स्क्वायर या फिर सर्कल. यहाँ पे UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो आपका LI टैग होता है जो डिफाइन करता है आपके ओपनिंग UL टैग के बीच में आता है. अब हम देखते हैं कि आपकी ओपनिंग UL टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं. सबसे पहला है टाइप. द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी स्क्वायर, डिस्क और सर्कल. बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज डिस्क. तो सबसे पहला है आपका टाइप. जो एट्रीब्यूट है आपका वो आपका स्क्वायर, डिस्क या सर्कल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है तीनों में से. एंड बाय डिफॉल्ट नेचुरली ये आपका डिस्क की तरीके से फॉर्मेटेड रहता है. देन कम्स योर डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन लिस्ट, ओपनिंग DL टैग एंड क्लोजिंग DL टैग. HTML description list or definition list displays elements in definition form like in dictionary. The opening DI tag, DT tag and DD tags are used to define description list. The three HTML description list tags are given below. First, DI tag defines the description list. Second, DT tag defines data term. Third, DD tag defines data definition description. तो अब आपका जो HTML डॉक्यूमेंट्स या डिस्क्रिप्शन की जो लिस्ट होती है या फिर डेफिनेशन होती है उसमें वो सारी चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं जिसमें आपकी जैसे डिक्शनरी में आपकी एक सीक्वेंशियल मैनर में हर चीज़ के बारे में डिफाइंड रहता है, बिल्कुल आपके HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी इसी तरीके का फॉर्मेट यूज होता है. अलग अलग टाइप के टैग्स आपके होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. पहला है आपका DI टैग जो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बताता है. देन कम्स योर DT टैग जो आपको डेटा टर्म के बारे में बताता है. देन कम्स योर DD टैग जो आपको डेटा डेफिनेशन देता है, डिस्क्रिप्शन देता है डेटा के बारे में. Let's see the use of DL, DT and DD tags in creating a definition list. अब इन तीनों टैग्स को यूज करते हुए किस तरीके से आप एक डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं, लेट्स चेक दैट आउट. सबसे पहला है nested list. Every list has the ability to be placed inside another list. For example, an ordered list can be nested inside an unordered list and vice versa. Ensure that the inner and outer list tags should be closed while creating nested list. तो पहला है nested list यानी कि एक लिस्ट को आप दूसरी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं. For example, an ordered list can be nested यानी कि put inside an unordered list. But इनके जो tags होते हैं make sure कि आप उसको अच्छी तरीके से लिखें, otherwise ये malfunctioning भी हो सकती है. Next is marquee tag. An HTML marquee is a scrolling piece of text displayed either horizontally across or vertically down or web page depending on the settings. Following is the list of important attributes which can be used with marquee tag. Attribute, value, purpose, behavior, scroll or slide or alternate. This attribute defines how the text scrolls. BG color, any color name or RGB value. It sets the background color of the marquee. H space, any value in pixels. It sets the horizontal space to the left and right of the marquee. V space, any value in pixels. It sets the vertical space to the top and bottom of the marquee. Direction, up, down, left, right. It indicates the direction in which the marquee scrolls. Loop, any value in number or infinite default. It specifies how many times the marquee should loop. Width, height,
पिक्सल्स और परसेंटेज, दीज एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ द मार्की। अब आपके आते हैं मार्की टेक्स्ट। आपका जो स्क्रोलिंग पीस होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टली भी होता है, वर्टिकली भी आपके पेज में होता है, तो वो किस तरीके से आपका मूव करेगा वो आपका मार्की टैग डिफाइन करता है। सबसे पहला आपका एट्रीब्यूट है बिहेवियर, उसकी वैल्यू क्या है, स्क्रोल, स्लाइड या फिर ऑल्टरनेट। ये इसका पर्पस होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से स्क्रॉल करेगा, लेफ्ट स्क्रॉल करेगा, राइट स्क्रॉल करेगा, किस तरीके से स्क्रोलिंग होगी वो डिसाइड करता है। फिर आपका आता है बीजी कलर। कोई भी आपका यहाँ पे या तो कलर का नेम हो सकता है या फिर उसी कलर की जो RGB वैल्यू यानी कि कलर कोड होता है वो प्रेजेंट होता है। बैकग्राउंड कलर क्या होगा मार्की का वो डिसाइड होता है। देन कम्स योर H स्पेस, ये आपकी पिक्सल्स की वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो भी आपको स्पेसिफाइड नंबर वहाँ पे गिवन है। जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्की वो डिटरमाइन होता है। फिर आता है V स्पेस, ये आपकी पिक्सल्स की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो वहाँ पे आपको स्पेसिफाइड है। जो वर्टिकल स्पेस होता है आपकी मार्की के टॉप पे और बॉटम पे वो डिसाइड होता है। देन कम्स योर डायरेक्शन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इट इंडिकेट्स कि आपका जो मार्की है वो स्क्रोल किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। देन कम्स योर लूप। लूप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज रिपीट करती रहती है तो या तो आप नंबर स्पेसिफाई कर देंगे कितनी बार मार्की को लूप पे लाना है, या फिर बाय डिफॉल्ट वो इनफाइनाइट नंबर्स में ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है। देन कम्स योर विड्थ एंड हाइट, ये पिक्सल्स या परसेंटेज होती है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके मार्की के डायमेंशंस होते हैं यहाँ पर वो स्पेसिफाई करे जाते हैं। Next in the list is tables in HTML. Tables help us to display data on the web page in an organized and systematic manner. They assist in the positioning and the arrangement of content on the web page. HTML table tag is used to display data in tabular form, row, column. There can be many columns in a row. We can create a table to display data in tabular form using table tag with the help of tr, td and th elements. तो आपका जो टेबल होता है HTML में, बेसिकली आपको डेटा को टैबुलर फॉर्म में जब डालना होता है तो आपको HTML में टेबल्स का फॉर्मेशन करना होता है सिंपली बाय यूजिंग द टेबल टैग। इसमें आपके रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स होते हैं, n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, जितने भी आपको चाहिए। सिंपली आपको टेबल टैग का यूज करना है विद द हेल्प ऑफ tr, dt एंड th एलिमेंट्स। HTML table tags. Tag description. Table tag, it defines a table. TR tag, it defines a row in a table. TH, it defines a header cell in a table. TD tag, it defines a cell in the table. Caption tag, it defines the table कैप्शन। तो आपके HTML में अलग अलग टाइप के टेबल टैग्स होते हैं। सबसे पहला है टेबल टैग, ये आपका टेबल डिफाइन करता है कितने टेबल्स होंगे, कितने तरीके के होंगे। फिर आपका TR टैग आता है जो आपके टेबल में रोज होते हैं उसको डिफाइन करता है। TH टैग आता है, ये हेडर सेल जो आपके टेबल में होता है उसके लिए यूज करा जाता है, उसको डिफाइन करता है। फिर TD टैग आता है, ये आपके जो टेबल में सेल्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। देन कम्स योर कैप्शन टैग, ये आपके जो भी टेबल का कैप्शन होता है वहां पर यूज होता है, उसको डिफाइन करता है। Let's see how to create table in HTML. As you can see, the data is arranged in a table, but the lines are not visible. The table consists of 5 rows and 3 columns. To add the borders to the cells, let us learn about the other attributes of table tag. तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप टेबल टैग को बनाते हैं। आप जो भी जब आप बनाना शुरू भी करेंगे तो आपको ये टेबल्स के बीच की लाइंस आपको विजिबल नहीं होंगी। लेट्स सी कि टेबल टैग में और क्या क्या attributes होते हैं। Attributes of table tag. The following attributes can be applied in a table to enhance its look. Border, BG color and border color. A table's border is specified through border attribute. It forms a border around the table. The border color attribute is used to specify the color of table's border. This attribute is defined in table tag. BG color attribute is used to set the background color of the whole table for just one cell. तो आपका सबसे पहले टेबल टैग का एट्रीब्यूट का रीजन क्या होता है, आपके ये टेबल को टैबुलर फॉर्म को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है, ब्यूटिफाई कर देता है। तो सबसे पहला आपका टाइप है बॉर्डर, बीजी कलर एंड बॉर्डर कलर। तो आपका जो बॉर्डर है, टेबल का बॉर्डर है, वो स्पेसिफाई होता है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट से। आपके टेबल के आसपास ये एक बॉर्डर क्रिएट कर देता है। फिर आपका आता है बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। आपका जो टेबल का बॉर्डर है वो किस कलर का होगा वो इस एट्रीब्यूट से पता चलता है। दिस एट्रीब्यूट इज डिफाइंड बाय आपका
टेबल टैग। देन कम्स योर बीजी कलर एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड का क्या कलर होगा, वो आपका बीजी कलर एट्रीब्यूट से शुरू होता है। एक सेल के पीछे का भी आप डिफाइन कर सकते हैं या पूरे के पूरे टेबल का भी आप बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट। Align attribute aligns the table with respect to the web page. Align attribute can take the following values. Left aligns the table. Center aligns the table. Right aligns the table. अलाइन एट्रीब्यूट में क्या होता है, आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, सेंटर में आएगा, कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी वो डिपेंड करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट में आपका सारा का सारा टेबल लेफ्ट साइड लाइन हो जाता है, सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर में आ जाता है, राइट अलाइनमेंट पे राइट में चला जाएगा। हाइट एंड विड्थ attributes. Height attributes specifies the table height and the width attribute specifies the width of the table. You can specify table width or height in terms of pixels or in terms of percentage of available screen area. Let's see the use of a border, color, align, height and width attribute of table tag. फिर आपका height और width attribute आता है, आपकी टेबल की क्या height होगी, क्या width होगी, तो आपका height attribute height and width attribute में specify होता है और width वाला width टेबल में स्पेसिफाई होता है। अब हम देखेंगे कि बॉर्डर कलर, अलाइन, हाइट और विड्थ जो टेबल के ही आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरीके से यूज करे जाते हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, do you know the default value of border attribute is 0? It specifies no border. तो by default जब आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो आपका जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो by default 0 पे होगा, यानी कि no border, कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। Cell padding and cell spacing. To control the spacing in cells, the cell spacing and cell padding attributes are used. Cell padding is used to add more space inside each cell. It defines the space between the cell border and the cell contents. Cell spacing is used to put more space around each cell. It defines the space between सेल्स। तो आपके सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होती है। सेल पैडिंग है बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही जितना स्पेसिंग आपको चाहिए होता है वो आप डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सेल स्पेसिंग होती है, सेल के बाहर दो सेल्स या मल्टीपल सेल्स के बीच में कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए वो डिटरमाइन करी जाती है। Do you know the attributes of a table also apply to the rows and columns also in a similar manner except for the cell padding and cell spacing. तो आपके जो टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रोज और कॉलम्स में सिमिलर तरीके से ही अप्लाई करे जाते हैं, बट वो सेम एट्रीब्यूट्स आपके सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में नहीं अप्लाई होते हैं। Now see the cell spacing and cell padding attribute of table tag. The default value of cell spacing and cell padding is 2 and 1 respectively. तो cell spacing और cell padding, cell spacing की value by default 2 होती है और cell padding की value by default 1 होती है। Merging columns and rows. We can merge columns as well as the rows of a table in HTML using the colspan and rowspan attributes of TD and TH tags respectively. तो आप columns और rows को आपस में merge कर सकते हैं simply by using the colspan and rowspan attributes. TD and TH tags के होते हैं ये। colspan के लिए होता है TD tag और rowspan के लिए होता है TH tag. Attributes of colspan and rowspan with TD and TH tag. Attribute colspan, attribute value number effect specifies 2 or more columns to be merged. Attribute rowspan, attribute value number effect specifies 2 or more rows to be merged. तो आपका colspan जो होता है, नंबर है पहली बात, तो इसकी वैल्यू आप देंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ये 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज कर देता है। रो स्पैन की भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे नंबर्स में और ये 2 या 2 से ज्यादा रोज को मर्ज कर देता है। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली आपका कॉल स्पैन और रो स्पैन में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए TD इन केस ऑफ कॉल स्पैन एंड TH इन केस ऑफ रो स्पैन आप 2 कॉलम्स या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं या फिर 2 या 2 से ज्यादा रोज को मर्ज कर सकते हैं। Critical thinking. Renu has created an ordered list but the items are not getting listed. What could be the reason? तो रेनू ने ordered list का एक लिस्ट बनाया है बट वो लिस्टिंग में आ नहीं रहा है। तो what do you think कि लैक कर रहा है कि वो लिस्ट में नहीं आ रहा है, ये आपको खुद आंसर करना है।
Let's revise. A list is a set of items usually written one below the other. The lists in HTML are of three types: unordered list, ordered list, and definition list. An ordered list is a list where all items are numbered. OL and LI tags are used for creating an ordered list. An ordered list has items that are not arranged in any particular order. UL and LI tags are used for creating an unordered list. Definition list is a list of terms and the definition or description. The DL, DT and DD tags are used for creating a definition list. A nested list is a list enclosed within another list. Marquee tag is used to display scrolling text on the web page. Tables are created using the 5 basic table tags: table, TR, TD, TH and caption. The attributes cell spacing and cell padding are used to customize a table. A table can be given a background color using BG color attribute with table, TR and TD tags. The columns and rows of a table can be merged using the col span and row span attributes respectively. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट में आप टैबुलर फॉर्म में चीज़ों को डाल सकते हैं, जिसमें आपकी 3 टाइप की बेसिकली लिस्ट आती है: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें आपके अलग अलग टाइप की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद आपका मार्की टैग यूज़ किया जाता है। वेब पेज में स्क्रोलिंग करके इस तरीके से होगी टेक्स्ट की। इसके अलावा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग होता है, जो सेल्स के अंदर और सेल के बाहर कितनी स्पेसिंग होगी वो डिफाइन करता है। फिर आपका कोल स्पैन और रो स्पैन आता है, जिसको आप अलग अलग टाइप के कोड्स को यूज करते हुए 2 या 2 से ज़्यादा रोज और कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए।